Hello guys, how are you? I will now teach you about trigonometric functions and its domain and ranges. Really, I will teach you only domain and ranges. First, domain, and before teaching you domain and ranges, but important things required is inequality of a trigonometric and its solution. It's a general solution, very important. I will tell you detail in 11th class, not in entrance. Now, for example, sin x greater than equal to half. How to find the solution of x? Really, when sin x is equal to half, we know x is equal to what? Pi by 6, 5 pi by 6, dot. Like, general solution is n pi plus minus 1 to the power n pi by 6. But here, the situation is fully defined. It is inequation. This type of problem is too difficult than this type of problem. It is equation, it is inequation. Okay? It is inequation, it is equation. Now I will teach about the solution of inequation. About the solution of inequation. कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ. पहला फाइंड PS solution. Find PS. PS मतलब principal solution of a trigonometric function. Those solutions lies in between 0 to 2 pi. In between 0 to 2 pi. That is called principal solution. You have to find intervals of angles in between 0 to 2 pi. How? First of all, sin x greater than equal to half means sin x greater than equal to pi by 6. Pi by 6. See here, ग्राफ में कैसे बनाता हूं देखो, ये रोटेशनल ग्राफ है. रोटेशनल ग्राफ मैं बताता हूं. ये वन रे दैट इज कॉल्ड पाई बाई 6 30 डिग्री, उसमें हाफ आता है. फिर साइन में 150 में भी हाफ आता है. एक बार सोचो, हाफ से ज्यादा सभी को पता है 90 में क्या होता है? 1 ही होता है. 90 में 1 ही होता है. पाई बाई 6 to 90 बढ़ गया. हमको हाफ से ज्यादा लेना है, मतलब हाफ से 1 तक, 1 से हाफ तक, मतलब हाफ से ज्यादा हुआ. लेकिन जब नीचे आएंगे ना, पाई में एंगल जब पाई होगा, साइन का 0 हो जाएगा, हाफ से कम हो जाएगा. मतलब ऐसा हुआ, this x should lies in between this interval. In between this interval. Remember one thing, this is called a PS, principal solution. Okay, this is called a principal solution. Now, first interval is solution is pi by 6 less than x less than 5 pi by 6. इक्वल लगाना है क्योंकि वहीं पे इक्वल भी है. ये मिनिमम इंटरवल. टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन GS, add 2n pi in two extremities of interval. It is theta extremity of interval. This is lower, this is higher. Add करो. कैसे ऐड करना है देखो. 2n pi plus pi by 6 x less equal to 2n pi plus 5 pi by 6. This will be the general solution. To get a particular solution, suppose
question you are asked to find this solution lies between 0 to 10 pi. n का डिफरेंट वैल्यू लेंगे, n इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 -1 -2 डॉट 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 like this. To get a particular solution you can put different integers of a. Here n is not natural number, n is 0 1 2 negative -1 -2 -3. That is the general solution. Remember, first of all find PS, then add 2n pi to extremities of the interval. This general solution valid for every trigonometric functions. Suppose cos x, suppose tan x, cot x, every. For any trigonometric equation, you can add 2n pi after finding the PS, principal solution. That's all. This is the rule. मैं बताता हूं पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे. पहला क्वेश्चन आईआईटी में क्वेश्चन आया था. ये क्वेश्चन f(x) इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ cos 2x प्लस रूट ओवर ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर. दिस इज वन फंक्शन gx, दिस इज hx. दोनों फंक्शन का एडिशन है. इंडिविजुअली दिस फंक्शन का डोमेन हम निकालेंगे, उसका भी निकालेंगे. दोनों का निकाल के दोनों का डोमेन निकालेंगे. पहले उसको क्या करेंगे, कॉमन लेना है. कैसे कॉमन लेंगे, पहले उसका डोमेन निकालो. उसका केस हुआ 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट. कंडीशन क्या होगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर डोमेन, बिकॉज रूट का अंदर द inside the value of a root never be less than 0, because root over negative does not exist. So this will be greater than equal to 0. 4 minus x whole into 4 plus x greater than equal to 0. Okay, then take number apply. That is equal to -4, that is equal to 4. Remember, this two value, what type of two value? That means where this factor turns to 0. For which 4 minus 4 0, x equal to 4. This interval turns to 0. For what value? X equal to -4. That means entire number line divided into 3 parts. 1 2 3. पहले तो जो चाहो कुछ भी इंटरवल ले सकते, उसको भी ले, उसको ले, उसको ले, कुछ भी ले. पहले एक ले लो. 4 से ज्यादा, 4 से जब ज्यादा होगा 4 माइनस सपोज 5, 4 माइनस 5 नेगेटिव, 4 प्लस 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव होगा. समझ में आना चाहिए. ये नेगेटिव जो हो गया दूसरा इंटरवल will alter their signs, plus minus. It is called Wavy-Carr method. It is called Wavy-Carr method. Our solution will be -4 to 4. So its solution क्या हम लिखेंगे, x equal -4 equal to less or equal to x less equal to 4. This is the solution of this function, that is called domain. Again we have to find domain of this function. This is the subject type problem. First of all you have to find solution of a subjective function, then enter into multi-choice question. Okay, मिटाता हूं, छाप लो, अच्छी तरह छाप लो. ओके ना, अभी मैंने पढ़ाया था इनइक्वालिटी. cos 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये रूट के अंदर है ना.
cos 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रूट के अंदर इक्वल टू 0 भी हो सकता है। एक बार ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो, ये cos थीटा है, थीटा थीटा थीटा, cos थीटा ग्रेटर देन 0 कौन सा इंटरवल में होता है, पहले हमको पता करना चाहिए कौन सा इंटरवल में होता है। cos 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन सा इंटरवल में होता है। देखो ऑल साइन tan cos, ऑल मतलब cos वहीं पे होता है, ये मतलब भी वहीं पे भी होता है, होता ना, होता वहीं पे भी होता है। क्या करें, ये क्या है 0 to π/4, ये क्या है, ये क्या है, हम भी ऐसा लिख सकते हैं, -π/4 to π/4 लिख सकते हैं ऐसे। दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, दिस इज ए क्वाड्रेंट, -π/4 to π/4। I can write like this, yes, 2x -π/4 to π/4, then add 2n π, अभी बताया था जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। Then this is the solution of this functional domain. We have to find such value of x, x निकालना है, अभी नहीं निकाले हम, क्यों, 2 डिवाइड करना पड़ेगा हमको, यहीं पे 2n π माइनस 2 डिवाइड करो, x निकालेंगे, ओ x में कॉमन लेना है हमको, 2n π माइनस π/4 by 2 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 2n π प्लस π/4 by 2, ऐसा ही है। उसको हम इसी तरह हम लेंगे, ओके। ठीक है, मैं मिटाता हूं बेटा, मिटाता हूं। फॉर n इज इक्वल टू 0 π/4, सॉरी वहीं पे थोड़ा गलत हो गया, नॉट -π/4, -π/2, -π/2 to π/2, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था, हम मिटा देता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है। क्या होगा, उसके बाद n इज इक्वल टू 0 लगा देंगे, n जब 0 लगाएंगे क्या होगा, -π/4 लेस देन x, n 0 लगाओ, ये 2 डिवाइड होगा, -π/4 लेस इक्वल टू π/4, ओके। पहला सॉल्यूशन -π/4 to π/4, फिर n1 लगाओ, n1 2π माइनस π/2, 4π माइनस π/2, 3π/2 बाय 3π/4 होगा, लेस देन इक्वल टू x, n1 लगाओ, 4 1 1, 2π प्लस π/2, 4π प्लस π, 5π/2 by 2, 5π/4, वो भी हो गया 5π/4। मैं उसको हटाऊंगा, मैं उसको हटाऊंगा, वो वाला रखूंगा क्योंकि मेरे को वो जरूरत है, प्लीज सी। फिर क्या है ना, 3π/4 5π/4 उसके अंदर ही आना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डोमेन ऑफ दिस एंड डोमेन ऑफ दिस, देन दे आर टेक देयर इंटरसेक्शंस। मैं पहले तो उसको निकाल दिया था, -π/4 तो π/4 निकाल दिया था ना, लेकिन देखो 5π/4, 5π/4, पाई मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 3.14 इंटू 5, 15.7 बाई 4, 15/4 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब इसके अंदर आएगा। जब 2 डालेंगे ना, 4 माइनस π/2, 8 माइनस π/2 7, π/2 7π/4 होगा, 7π/4 होगा,
जब 2 डालेंगे, और 2 4, जब 2 डालेंगे 4 पाई 4 पाई प्लस पाई बाई 2, 8 पाई प्लस पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, पाई 9 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4, ये 7 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4, आप उसको अप्रोक्सीमेटली 3 बना दो। 7 इंटू 3 21, 21 बाई 4 5 से ज्यादा होगा, ये हमारा 4 से कम है, लेकिन n हम 2 नहीं डालेंगे, n इक्वल टू 2 नहीं डालेंगे, क्योंकि उसका अंदर नहीं आता, समझ में आना चाहिए। क्या करें फिर, n इक्वल टू 0 लिया था, 1 लिया था, 2 तो नहीं लेंगे, क्या करें, नेगेटिव साइड इंटीजर होने -1 होगा, n इक्वल टू -1 हम लेंगे। ओके, n जब -1 लेंगे माइनस पाई होगा, -2 पाई होगा, माइनस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, -4 पाई माइनस पाई -5 पाई बाई 4 होगा, क्योंकि नीचे में 2 है, -5 पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन, फिर उसमें डालेंगे ना -1, -2 पाई प्लस पाई बाई 2 बाई 2, -4 पाई प्लस पाई -3 पाई बाई 4, -3 पाई बाई 4, -3 पाई बाई 4, नेक्स्ट क्या होगा, -5 पाई बाई 4 x लेस इक्वल टू -3 पाई बाई 4। यू कैन वेरीफाई फॉर n इज इक्वल टू -2 के लिए होगा कि नहीं, नहीं होगा, -2 लगो आप, -4 पाई -4 पाई -5 बाई 2, -4 पाई -80 पाई -9 पाई बाई 4, -9 पाई बाई 4 क्या होता है, ये 3 वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे, -27 बाई 4, 6 पॉइंट समथिंग, ये क्या हुआ, -4 से कम हो गया, मतलब ये n इक्वल टू -2 नहीं बनेगा, मतलब n इक्वल टू 0 1 -1। उसके बाद हम कॉमन निकालेंगे, कैसे कॉमन निकालेंगे, ये तीनों के अंदर ये तीनों कॉमन है, सो डोमेन क्या होगा, वही होगा, वो तीनों तो इसके अंदर है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 3 solution is the solution of cos 2x. We have to find the common solution of 4 intervals, 1 2 3 4, ये 3 intervals are in this interval, देखो -4 to 4, -पाई बाई 4 आएगा ना, -पाई बाई 4 तो पाई बाई 4, उसके अंदर आए पाई मतलब 3 पॉइंट समथिंग बाई 4, वो छोटा होगा पॉइंट समथिंग, ये भी पॉइंट समथिंग उसके अंदर आएगा, वो 3 पाई बाई 4, 3 मतलब 9 बाई 4, 2 पॉइंट समथिंग उसके अंदर आएगा, -5 पाई उसके अंदर भी आएगा, -15 पाई -3 पॉइंट समथिंग उसके भी अंदर आएगा, मतलब डोमेन क्या होगा, डोम ऑफ f -पाई बाई 4 to पाई बाई 4 क्लोज्ड यूनियन 3 पाई बाई 4 to 5 पाई बाई 4 यूनियन क्लोज्ड -5 पाई बाई 4 to -3 पाई बाई 4। This is the answer. It is the long type questions. Now comes to multi-choice question of a trigonometric functions. Let's again start. Another question लेंगे अभी, और एक क्वेश्चन लेंगे। अच्छा ठीक है, y is equal to find y is equal to question number 1 cos x, उसका हम रेंज निकालेंगे, कैसे रेंज निकालेंगे, देखो बेटा
ये बिल्कुल पॉजिटिव 1/2 माइनस कॉस एक्स, ये तो पॉजिटिव होना ही है। 2 माइनस कॉस एस तो कभी 2 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कॉस एस का वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, मतलब ये भी पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, कभी इक्वल टू 0 नहीं होगा। मतलब कम से कम मिनिमम आइडिया हो गया। y मीन्स रेंज, हमको रेंज निकालना है, ये फंक्शन का रेंज, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रेंज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? रेंज निकालेंगे। देयर आर two methods to find ranges, by heat and trials, by traditional method. First of all, find range of a function by heat and trial method. Heat and trial method मतलब क्या है? y का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, फिर मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम के अंदर y रहेगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम के अंदर y रहेगा। कैसे रहेगा? देखो, y मैक्स 1/मिनी, इफ 1 को मिनिमम से डिवाइड करेंगे, इफ यू डिवाइड 1 बाय मिनिमम वैल्यू, रिजल्ट विल बी मैक्सिमम। एग्जांपल देता हूं, 5/001 इज इक्वल टू 500। 5/0001 क्या होगा? 50001, इतना ही बड़ा हो जाएगा। मतलब जब मिनिमम डिवाइड करेंगे मैक्सिमम मिलेगा। देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 माइनस cos x? cos x का वैल्यू क्या होगा? cos x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 2 माइनस 2 इज फिक्स, जब मैक्सिमम चल जाएगा मिनिमम मिलेगा। 2 माइनस 1, cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सपोज यू हैव 2 रुपीज, you will expend maximum value, then get a minimum value. This is the concept behind it. Okay, cos x का maximum value 1, we everyone knows it. 2 minus 1 is equal to 1. मतलब 1/1 is equal to 1. It is a maximum. Y minimum 1 by max. मैक्स क्या होगा? 2 माइनस cos x, 1/2 माइनस 2 से मिनिमम चल जाएगा, घटेगा, जब मिनिमम घटेगा मैक्सिमम मिलेगा, इक्वल टू 1/3। सो दिस इज द मिनिमम रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 1/3 से लेकर 1 तक। This is the minimum. This is the minimum. By heat and trial में बना दिया मैंने। मेथड 2 मैं बताता हूँ, मेथड 2 कैसे करते हैं। ये जनरल मेथड सभी बच्चे 11th क्लास में भी ये मेथड करते हैं, लेकिन जो एंट्रेंस देता है वही मेथड एनालिटिकल मेथड में करना ही पड़ता है, यही मेथड में करना ही पड़ता है। वही मेथड में जनरली मैं अप्लाई करता हूँ, लेकिन जब 11th क्लास में बच्चे आते हैं ना, वही मेथड अप्लाई करते हैं। मेथड 2, मेथड 2, राइट y इज इक्वल टू 2 माइनस cos x। हमको y का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस cos x इज इक्वल टू 1/y। y नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ये 10th वाला का पाठ है ना। ओके, उसके बाद क्या करना है? 2 माइनस 1/y इज इक्वल टू cos x। देखो, लेफ्ट को देखो, राइट को देखो, cos x का वैल्यू किसका अंदर आता है? किसका अंदर आता है? cos x बोलो, किसका अंदर आता है? cos x का वैल्यू -1 to 1। सो 2 माइनस 1/y to -1। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? 2 केस अराइजेस। केस 1, 2 minus 1/y less or equal to 1 implies 2 minus 1/y minus 1 less or equal to 0. 1 minus 1/y less or equal to 0. Okay. Y minus
1 by y less or equal to 0. Follow वही कर्म था. This will be 0 for 0. This will be 0 for 1. अपर वाला 0 कैसे होता है. उसके बाद सॉरी 0. This will be 1. 1 से ज्यादा लेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. मतलब क्या हुआ? 0 to 1 it is negative. Again, this also greater than equal to minus 1. 2 minus 1 by y greater than equal to minus 1. Remember, there are two cases. There are two cases. This less or equal to 1, this greater than equal to minus 1. In both cases, get a solution, get their intersection. This is the logic behind it. Okay, we have to now find the solution. Now I can इसको मिटा दूं. ओके 2y minus 1 by y sorry 2 minus 1 by y plus 1 greater than equal to 0. 3 minus 1 by y greater than equal to 0. 3y minus 1 by y greater than equal to 0. That will by follow orbital method. नीचे वाला 0 होता है 0 में, ऊपर वाला 0 होता है किसके लिए पता. 3y minus 1 is equal to 0, y is equal to 1 by 3, 1 by 3 right of the 0. That will be positive, negative, positive. हमको क्या जरूरत है? हमको क्या जरूरत है? वही तो जरूरत है ना. ग्रेटर वाला 0, ग्रेटर वाला 0 दरकार, उसमें वही चीज हमको जरूरत है. ग्रेटर देन 0. ये कहां पे आया? 1 by 3 से ज्यादा, 0 से कम. वो दोनों का कॉमन लेंगे, वो वाला. कैसे कॉमन लेता हूं मैं बताता हूं कैसे कॉमन लेना है. एक ही लाइन में दोनों सॉल्यूशन डाल देना चाहिए. डाल दो, दोनों सॉल्यूशन को पता दो उसमें. ठीक है. ये 1 by 3 कहां पे आएगा? वहीं पे आएगा. उसका तो सॉल्यूशन वही था, 0 to 1 नेगेटिव था ना. ये ग्रेटर देन 0 है. ये क्या आएगा? 1 by 3 कहां से आएगा? 1 by 3 वहीं तो आएगा ना. 1 by 3 1 by 3 से कम, मतलब वही कॉमन तो वही होगा. 0 से कम, उसमें तो कॉमन नहीं है. हमको क्या करना है? उसके अंदर वही तो कॉमन है. रेंज ऑफ, मतलब रेंज of f is equal to 1 by 3 to 1, the same answer. This is the length method. This is the length method. This method मैं कभी नहीं अपनाता, लेकिन जब प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, हीट एंड ट्रायल में कभी कभी सभी प्रॉब्लम 80% प्रॉब्लम हो जाता है. ओके, थैंक यू.